First year English, lecture number 49, topic the reward, chapter number 6. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. First year class, how you all beta? I hope you all fine, and I say welcome to all of you in my class. Beta, let's start our today's chapter, that is the reward, chapter number 6. And beta, this short story has been written by Lord Dunsany. Lord Dunsany, beta, he was a very famous writer and short story writer. Beta, he was born on 1878 and he died on 1957. Since he wrote a lot of books and he was very famous as well. Beta, in this story, the author, he gives us a message that if you struggle continuously and if you have an ambition and you get this ambition and you do struggle for that ambition, so in the end you will be able to win your goal, as it is a very famous maxim that slow and steady wins the race. If you are persistent, if you are hard worker, if you are courageous, and if you don't lose heart, and if you struggle continuously, so you will be able to get your goal, whatever the goal is. So it will be very, you can say, easy for you to get that goal if you are ambitious and if you are stick to your ambition. ठीक है, अगर आप अपने एम्बिशन के साथ बेटा स्टिक रहो और उसको हासिल करने के लिए, जस्ट स्टिकिंग इज़ नॉट इनफ, यू हैव टू डू सम हार्ड वर्क फॉर गेटिंग इट. ठीक है, उस पर मेहनत करनी, उस पर काम करना है, देन यू विल बी एबल टू गेट इट्स फ्रूट. So this is the story, and the hero, the protagonist of this short story is Georgius. ठीक है बेटा, so let's start. Our talk at the club one day was of opportunity and determination. Some said opportunity was required for success and millions never had it. Others that only determination was needed. So beta, the person who is telling the story of the Georgius, he is saying that our talk at the club. Club mean वहाँ पे जहाँ पे लोग से बैठ जाते होते हैं. ठीक है, they just talk about the days happening and what was going on. So our talk at the club one day was opportunity and determination. और बेटा क्या डिस्कस कर रहे थे? That opportunity and determination. Opportunity क्या होती है बेटा? चांस, मौका. And determination क्या होता है? अज़्म, पुख्ता इरादा. So some said opportunity was required for success. किसी ने कहा कि जो opportunity है success हासिल करने के लिए उसकी ज़रूरत है. ठीक है, एंड मिलियंस नेवर हैड इट, और बहुत सारे लोग जो हैं उनके पास ये नहीं होती अपॉर्चुनिटी, जो मौका है ये तो बहुत सारे लोगों के पास ये नहीं होता. ठीक है, अदर दैट ओनली डिटर्मिनेशन वाज नीडेड, और किसी काम के लिए सिर्फ डिटर्मिनेशन चाहिए होता है. एंड देन जॉकन्स ज्वाइन इन ऑल फॉर डिटर्मिनेशन. फिर जॉकन्स ने कहा कि पुख्ता अज़्म की सिर्फ ज़रूरत होती है. इफ़ अ मैन वाज डिटर्मिन्ड टू गेट एनीथिंग एंड स्टक टू इट लॉन्ग इनफ, he got it, said Jawkins. कहते हैं कि अगर एक आदमी जो है, अगर कोई इंसान किसी चीज़ हासिल करने का पुख्ता इरादा कर ले, डिटर्मिनेशन कर ले, पुख्ता इरादा कर ले, एंड स्टक टू इट लॉन्ग इनफ, और बहुत देर तक और काफ़ी देर तक इसके ऊपर कारबंद रहे, कायम रहे अपनी इस ख्वाहिश पर, ही गॉट इट, तो वो इसको हासिल कर लेता है. सेड जॉकन्स, जॉकन्स ने कहा. एनीथिंग, एज टर्बट ने कहा कुछ भी. एनीथिंग, जॉकन्स रिप्लाइड. So long as he sticks to it and sticks it to hard enough and long enough, anything whatever. कहते हैं कि बशर्ते कि बहुत सख्ती से और बहुत लंबे अरसे तक उस पर कायम रहे, तो फिर वो चाहे कोई भी चीज़ हो वो हासिल कर सकता है. Turbot disagreed. He was not ready to believe him. He did not agree with him. उसने उसके साथ इत्तेफाक नहीं किया. Life is like a race, Jawkins went on, in which they tire after a while and sit down or get interested in something else instead. The man who keeps on wins the race. So बेटा कहते हैं कि life is like a race. Life तो जो है एक ज़िंदगी की दौड़ की तरह है. एक ज़िंदगी जो है एक दौड़ की मानद है, रेस की तरह है. Jawkins went on mean he continued his talking. तो उसने अपनी बात जारी रखी. In which they tire after a while, जिसमें वो कुछ देर बाद थक जाते हैं, ऐसे डाउन और बैठ जाते हैं, और गेट इंटरेस्टेड इन समथिंग एल्स इंस्टेड, उसकी बजाय किसी और चीज़ में इंटरेस्ट लेता है. मीन टू से इफ़ अ पर्सन डजंट हैव अ चांस टू गेट हिज गोल, सो ही डज़ नॉट स्टिक टू इट, वो इस पर कायम नहीं रहता बल्कि अपना गोल ही चेंज कर लेता है.
द मैन हु कीप्स ऑन, कहते कि वो आदमी जो है कि दौड़ता रहता है, विंस द रेस, दौड़ जो है वो जीत जाता है। वही बात है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ठीक है बेटा। सो एंड सपोज द मैन वांटेड टू बी स्केटिंग चैंपियन ऑफ द सहारा, सेड टर्बट, एंड कुडंट अफोर्ड द मनी टू गेट देयर। कहते कि अगर कोई मैन सहारा का जो है, अगर कोई आदमी, सहारा बेटा इट्स द नेम ऑफ डेजर्ट एंड इट इज़ द बिगेस्ट डेजर्ट। सहरा जो है सबसे बड़ा सहरा है, सहराए आज़म इसको कहते हैं। ठीक है। सो कहता है अगर कोई सहारा का चैंपियन, स्केटिंग चैंपियन बनना चाहता हो, स्केटिंग बेटा समझते हो ना? ठीक है, जैसे ये पिक्चर में आपको मैं इमेज शो की हुई है, तो दिस इज़ कॉल्ड स्केटिंग। तो कहते हैं कि अगर स्केटिंग चैंपियन बनना चाहता हो सहारा का, फिर वो क्या करेगा? एंड कुडंट अफोर्ड द मनी टू गेट देयर, और वहाँ पे जाने के उसके पास पैसे भी ना हो, देन व्हाट विल ही डू? ही वुड मेक द मनी, सेट जाकर वो पहले पैसे बनाएगा, पैसे इकट्ठे करेगा। ठीक है, पैसों का बंदोबस्त करेगा। एंड ही वुड बिल्ड अ स्केटिंग रिंक इन द सहारा, और वो एक सहारा रिंक बनाएगा, सहारा एरिना बनाएगा। ठीक है, मैदान बनाएगा इन द सहारा, एंड ऑर्गेनाइज अ कंपटीशन देयर, वहाँ पे एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करेगा। ही वुड बी स्केटिंग चैम्पियन ऑल राइट, तो वो वहाँ का स्केटिंग चैम्पियन बन जाएगा इफ़ ही रियली गिव्स ऑल हिज टाइम टू इट, अगर वो अपना सारा वक्त उसको देगा। मीन टू से द ऑथर इज ट्राइंग टू कन्वे अस द मैसेज दैट इफ़ वी sincerely stick to our goal, there is no way that you cannot win our goal। कि अगर हम अपना मकसद के साथ बेटा स्टिक रहते हैं, कायम रहते हैं उसके ऊपर, परसिस्टेंट रहते हैं, तो उसमें कोई वजह नहीं कि हम अपना गोल जो है, अपना मकसद हासिल ना कर सकें। ओके, कुड यू टेल अस अ केस लाइक दैट? एज वन ऑफ अस, हम में से किसी ने पूछा कि क्या ऐसा कोई वाक़या सुना सकते हो कि ऐसे किसी ने कोई एफर्ट की हो? एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई कैन, सेड जॉकर्स, अ वेरी सिमिलर केस। कहते हैं इंडीड, दर हकीकत इससे मिलता जुलता एक वाक़या जो मैं आपको सुना सकता हूँ। लेट्स हियर इट, सेड टर्बट, आओ उसको सुनते हैं। There was a young fellow, and said Jawkins, to whom his parents probably used to say the very thing that we have been saying now, and very likely he, as many young fellows do, may have wanted to prove them wrong। कहते कि एक नौजवान था, there was a young fellow, said Jawkins, to whom his parents probably used to say the very things, जिसके यकीनन उसके वालिदैन वही कुछ कहते होंगे, that we have been saying now, जो कि हम अभी कह रहे हैं, अभी हम गुफ्तगू कर रहे हैं, and very likely he, और हो सकता है कि एज मैनी यंग फेलोज डू मे हैव वांटेड टू प्रूव देम रॉन्ग, वो भी जैसे बहुत सारे नौजवान करते हैं अपने वालिदैन को गलत साबित करना चाहता हो। आई डोंट नो, इट वॉज़ अ लॉन्ग टाइम अगो, कहता मैं नहीं जानता, ये काफ़ी अर्सा पहले की बात है। ओके, सो बट वट एवर हिज मोटिव वॉज, ही हिट ऑन अ मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एम्बिशन। कहते हैं कि जो भी उसकी मोटिव में मकसद, एम, कि जो भी उसका मकसद था, ही हिट ऑन अ मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, गैर मामूली, तो बेटा गैर मामूली जो है उसका मकसद हयात बन गया। क्या था उसका मकसद? एंड स्टक टू इट, और उस पर कायम रहा। इट वॉज परसिस्टेंट रहा। इट वॉज नथिंग लेस दैन टू बी अपॉइंटेड कोर्ट एक्रोबैट, और वो कोर्ट एक्रोबैट बनना चाहता था। क्या बेटा? शाही दरबार में बाजीगर बनना चाहता था। बाजीगर होते हैं, एक्रोबैट में बाजीगर, जो कि करतब दिखाते हैं डिफरेंट टाइप के। ठीक है, एक्रोबैट, what said Turbot, क्या? तुर्बत ने कहा एक्रोबैट। जॉकर्स वेंट ऑन टू द कोर्ट ऑफ द कंट्री इन विच ही लिव्ड, उस मुल्क के दरबार में जहाँ पे वो रहता था। ठीक है, वट काइंड ऑफ कंट्री वॉज दैट? एस टर्बट, टर्बट ने पूछा किस किस्म का मुल्क था? नेवर माइंड वट कंट्री इट वॉज, सेड जॉकर्स, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट्स कॉस्ट्यूम्स weren't, its customs were not silly as to suppose। कहते हैं कि इस बात की फ़िक्र ना करो कि कौन सा मुल्क था, और ना ही उसके जो कस्टम्स थे, उसकी जो ट्रेडिशंस थी, दे वर सो सिली एज यू सपोज, एज यू थिंक, जैसा आप समझते हो उस तरह की उसकी रवायात नहीं थी। दे हैड नो पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबैट एंड नेवर हैड, ना तो उनके शाही बाजीगर की कोई आसामी नहीं थी और ना ही कभी रही थी। बट दे डिडंट स्टॉप यंग जॉर्जियस, लेकिन वो यंग जॉर्जियस को रोक ना सका। दैट वॉज हिज नेम। ही वॉज अ गुड एथलीट व्हेन ही केम बाय हिज वाइल्ड आइडिया एट अबाउट द एज ऑफ 16। कहते बहुत ही अच्छा खिलाड़ी था, और जब उसको ये वाइल्ड आइडिया आया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइडिया जब उसके माइंड में आया, ही वॉज जस्ट ऑफ 16 एज एंड ही हैड वॉन द हाई जंप एंड द हर्डल्स एंड द 100 yards एट स्कूल।
और बेटा वो अपने स्कूल में ही 16 साल की उम्र में ऊंची छलांग जो है, हर्डल्स, हाई जंप, हर्डल्स जो रुकावटें होती हैं, एंड द 100 यार्ड्स और 100 गज वाली दौड़ के मुकाबले जीत चुका था। वेल देयर वाज अपॉर्चुनिटी, आर्ग्यूटेबल, अच्छा तो उसे मौका मिल गया था ना, इफ़ ही वाज बोर्न अ गुड एथलीट, अगर वो पैदाशी तौर पर अच्छा एथलीट था। बट वेट अ मोमेंट सेड डॉकिंस, यू डोंट रिमेन एन एथलीट ऑल योर लाइफ एंड ही स्टिल हार्ड टू गेट द पोस्ट क्रिएटेड। लेकिन कहते हैं कि आप सारी ज़िंदगी अच्छे एथलीट तो नहीं रह सकते, और इसलिए तो अभी उस अहदे को जो है उस पोस्ट को मुतारफ़ भी करवाना था। मीन टू से ही हैड टू क्रिएट द न्यू पोस्ट, अभी उसने वो नई पोस्ट जो है वो मुतारफ़ भी करवानी थी। सो बेटा इट्स एनफ फॉर टुडेज़ लेक्चर and I hope that you have well understood. Beta, if you find any difficulty, any problem, you may ask me, and inshallah I will try to remove your problems, and beta I will wait for your feedback as well. And till next lecture, stay blessed and Allah Hafiz.